Okay. This was the first question. This was the homework given. What is the answer? ये क्वेश्चन का आंसर क्या है बोली? The average power is 0 watt. How? So phi is coming pi by 2, so cos phi would be 0. Okay. Current function is given by sine. Voltage function is given by cos. So that can be written as, what can we write? Cos को भी sine करना है ना? Because both should be sine function, then plus phi by 2. plus or minus. Therefore, phi is equal to pi by 2. Therefore, average power is 0. Because in average power, cos phi comes. Moment cos phi is 90. Therefore, whole value becomes 0. Yeah? Clear? Which device? कौन सा एलिमेंट होगा ये? इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा? वोल्टेज इज लीडिंग है. Inductor. वोल्टेज current is वोल्टेज लीडिंग, इंडक्टर होगा ना. करंट इज लैगिंग, इट विल बी इंडक्टर. Since current lags, voltage leads. तो इस तरह से ये क्वेश्चन अक्सर दिखते हैं. either current is cos function or voltage is cos function. One will be sine, other will be cos. तो दोनों में से एक साइन और एक cos है, तो power will be 0 because sine and cosine functions are out of phase by 90 degree, and average power formula is, क्या formula by the way? ERMS into IRMS into cos phi. cos phi. Therefore, whole things become 0 in case of cos phi being cos 90. All right. This is very frequently asked question in all forms of examination, including boards. Not color. Okay, done. Yes, sir. All right. Now next one is the LC oscillator or LC oscillation. As L stands for inductor, C stands for capacitor. If we connect charge capacitor to the inductor, what happens? It will start getting discharge, or current will increase, charge will decrease. So initially all energy will be electrical, Q square by 2C. Charge decreases now, तो ये एनर्जी डिक्रीज होगी और इसकी एनर्जी बढ़ेगी. इंडक्टर की एनर्जी कितनी होती है? हाउ मच इज द एनर्जी ऑफ इंडक्टर? हाफ Li square है ना. दिस विल इंक्रीज
and its energy will decrease. One point will come when all charge will become zero. यहाँ पे charge zero हो जाएगा. This current at that moment will be peak current. All energy will be magnetic energy. But since charge becoming zero and current remaining maximum, inductor will not allow the current to become zero immediately. It will pull some more positive charge from this plate and send it this side. तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकल जाएंगे, है ना, और वो इधर आ जाएंगे, तो ये थोड़ी देर बाद ये निगेटिव हो जाएगी, ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, एंड स्लोली करंट विल बिकम जीरो बिकॉज सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेना एक सर्टेन लिमिट तक रहेगी, धीरे अपोज करेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गई प्लेट, अब ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस नहीं आ सकते इधर, तो एक स्टेज के बाद जीरो हो जाएगा. Now this is full. This is again charged fully, and with positive polarity in other side. Same process repeat this side. इधर से ऐसे repeat होगा फिर से. Charges will oscillate like this. ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे like this. So oscillation of charge is equivalent to the AC signal. So what does it do? Why do we want to oscillate the charges? What is the purpose? So they are used to produce AC signals of particular frequency from DC energy, battery की energy से AC signals. These AC signals will be used in communication. Signal भेजने के लिए, है ना, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजना है, so these oscillators are connected in the transmission devices. ठीक है, तो इस तरह से चार्ज ऑसिलेट होते हैं LC ऑसिलेशन में. बट देयर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायरिंग्स. ये जो वायरिंग्स हैं, तो स्लोली some energy will convert into the heat energy, and after some times oscillation will damp out. धीरे धीरे एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी एक बार चार्ज करके लगाया. तो we should have some additional source of energy so that we get the constant oscillations. We get the constant oscillation, है ना. कुछ एनर्जी होना चाहिए सोर्स, तो बैटरी लगा के रखना पड़ता है, और उसमें ट्रांजिस्टर भी लगाया जाता है, क्योंकि ये बार बार उसको टर्न मतलब ऑन मतलब ये ऑसिलेशन प्रोवाइड करने के लिए वी कैनॉट स्विच ऑन अगेन एंड अगेन. यहाँ पे एक स्विच, एक बार यहाँ पे स्विच ऑन करना पड़ता है, बट डैम्पिंग हो जाती है, फिर से एनर्जी लगाओ, फिर से बैटरी लगाओ, है ना. So that is done by the transistor, which is semiconductor device. So we'll again see the oscillation, transistor assisted oscillations in semiconductor chapter. ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि इट इज कांस्टेंट, ऑसिलेशन इज नॉट डैम्प्ड. प्रैक्टिकली डैम्पिंग हो जाती है ना, जैसा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन हमने पढ़ा है ना, मैकेनिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑटोमोबाइल सिस्टम में होता है. देयर वी नीड इट, वी डोंट नीड द कांस्टेंट ऑसिलेशन ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी ऑफ कार और टू व्हीलर. बट हियर वी डोंट नीड इट, डैम्पिंग वी डोंट नीड इट, वी वांट कांस्टेंट ऑसिलेशन. तो उसके लिए फिर ट्रांजिस्टर असिस्टेड रहेगा. तो for sometimes we'll assume it is constant oscillation, we'll solve the problems without any loss. Loss हम assume नहीं करेंगे, practically there are losses. ठीक है, तो this is the purpose. Now how does it work? थोड़ा सा और part देखते हैं इसमें. ये already I told you, in this LC oscillator electrical energy oscillates between capacitors and inductors similar to the mechanical oscillations, and this produces the and provide or produce AC signal, already written here. So this point you can just leave it. Just leave it. This much is enough. Okay, this much is enough. Now, derivation of what frequency?
what frequency you need, तो कितनी frequency का oscillation चाहिए, तो उस frequency का derivation करते हैं. We'll see on what factors the frequency depends. Every oscillator will have its certain frequency. So let's see, frequency depends on what. So derivation of frequency we see. Is it okay? Yes, sir. Frequency का derivation देखते हैं. देखो, let at t is equal to 0, capacitor having the charge qm, maximum charge qm है उसके ऊपर, is connected to the inductor. Charge and capacitor starts decreasing. What जो मैंने explain किया वो point, charge will start decreasing, current will start increasing. Now at any time t, charge remaining is q, using the Kirchhoff law. Let's see the Kirchhoff law. यहाँ से start कीजिए. या पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने हैं, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस विल बी q by c, एंड यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी, करंट ग्रो हो रहा है. इंड्यूस ईएमएफ इन इंडक्टर इज माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0. रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि नहीं है, नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज देयर. तो ओनली two things, two potential differences. Now q can be written as minus dq by dt, because charge decreases, something decreases means dq will be, और dx will be minus. तो यहाँ पे dq है तो dq minus है ना. तो decreasing physical quantity is denoted by minus. So I will be minus dq by dt. Put this value here. So minus becoming plus, and this is becoming second derivative of charge. दो बार है dt, यहाँ भी second derivative. Now changing the sides, इसको हमने इस d second derivative को आगे लाए, l से divide भी कर दिया, l नीचे आ जाएगा, lc and q. देखो यहाँ पे q है, यहाँ पे q है. This equation is similar to this equation, which is SHM, which is nothing but a simple harmonic motion. So here charge is doing simple harmonic motion, going anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, and so on. So charge is oscillating. तो यहाँ पर ये x का q का equivalent x है. x was the displacement there, है ना. तो q का equivalent x है. ओमेगा नॉट का equivalent क्या है? 1 by LC. So omega naught is equal, omega naught square, sorry, is equal to 1 by LC. Therefore omega naught is 1 by under root of LC radian per second, and hence frequency will be 2 pi also. Frequency लिखेंगे तो नीचे 2 pi भी आ जाएगा, 1/2 pi under root of LC. Got it? Hertz. So it is same as of the resonant frequency. Resonant frequency भी same थी. कोई नया फार्मूला लर्न नहीं करना है आपको. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला था, सेम फार्मूला इज वैलिड हियर. यू डोंट हैव टू जस्ट लर्न द न्यू फार्मूला. तो थिंग्स आर सेम, तो नो एक्स्ट्रा बर्डन. There it was resonant frequency. Here it is frequency of device. If you want to increase the frequency, you have to change these terms. L को decrease करो या C को decrease करो. Frequency will go up. जो frequency का चाहिए, जितने frequency का transmission चाहिए आपको, production चाहिए, first you have to produce, then you have to use it in the transmission. So L and C will decide. C generally microfarad में रहता है, 10 to the power 3 तो ऊपर आ ही जाएगा उसकी वजह से, and other things will be can be solved. Clear? So this is one point. This is just frequency का derivation. इस पे questions हैं textbook में, so we can do that. All right.
टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम पीरियड में ही आएगा। नीचे लिख दो सेम एज इन केस ऑफ रेजोनेंस ऑफ एलसीआर, चले राइट हियर सेम एज दैट इन सेम एज इन केस ऑफ resonance frequency. In LCR series circuit. Done? Okay. Yes, sir. तो ये फार्मूला लर्न करके रखिए, सेम है, कुछ नया नहीं लर्न करना। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी है गिवन यू कि जिस समय स्विच ऑन करेंगे यहाँ से चार्जेस डिक्रीज होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हाफ LI स्क्वायर, है ना। तो जब पूरे चार्ज जीरो हो जाते हैं यहाँ पर तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, IM हो जाएगा, and inductor will not allow the current to drop, it will continue to extract positive charges and यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, धीरे 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 निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड प्रोसेस रिपीट्स अगेन, है ना। इनिशियल कंडीशन में देखिए यहाँ पे ऑल द एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल, इट इज इक्विवेलेंट टू द एज वी हैव कंपेयर्ड इट विद द, इससे कंपेयर किया हम लोगों ने मैकेनिकल ऑसिलेशन से। तो जब मास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, in that case potential energy is maximum, half kx square। तो उसके बाद क्या होगा, हाफ टाइम 1/4 टाइम पीरियड में T/4 पर इट विल, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी जीरो है और इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यहाँ पे मैग्नेटिक करंट है ही नहीं, जीरो इनिशियल में, यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बाद में T/2 पर क्या होगा, T/4 सॉरी 1/4 ऑफ ऑसिलेशन, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर जब पहुंचते हैं टाइम टेकन इज T/4। तो ऑल द पोटेंशियल एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये जीरो हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, हाफ LI max स्क्वायर, दिस विल बिकम जीरो। तो T/4 पर at T/4 all the energy converts into other form of energy, इसमें all electrical will convert into magnetic energy half LI square, current being maximum at that moment, ठीक है। तो जो कन्वर्जन कितने T/4 पे हो जाता है, वन एनर्जी का दूसरे एनर्जी में, T/8 पर इक्वल होंगे दोनों, T/4 पर वन एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अदर, T/8 पे 50-50 होंगी दोनों एनर्जी। T कितना होगा, हाउ मच विल बी द टाइम पीरियड, कैन समबडी टेल, ये लिखा तो है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, इसके 1/4 पर वन एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू अदर एनर्जी कंप्लीटली। तो टाइम पीरियड का यहाँ से रेसिप्रोकल करके टाइम पीरियड निकाल लिया, गॉट इट। तो दैट्स हाउ things will be oscillating, charges will be oscillating, and we get the AC signals from the DC energy. तो कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, how much time it will be converting into fully electrical or fully magnetic। देखते हैं, ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए न्यूमेरिकल्स में, they will help you out। Let's see, in time T/4 all electrical energy converts into magnetic, and in next T/4 again फिर क्या होगा, फिर इधर जैसे ये मास इधर जाएगा, यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन होगी इसमें इधर, है ना। तो सेम थिंग विल हैपन अगेन आफ्टर T/4, ऑल मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
but with the reverse polarity. I told you lower plate will be positive then. Self-induction phenomena say polarity will be reversed due to self-inductance phenomena of inductor. This process repeats and hence energy oscillate with the frequency जो हमने ऊपर derivation किया. That's what certain derivation are not asked. वैसे भी इस बार तो objective ही है, but otherwise they will ask you to explain and write the frequency relation. Okay. So that's how you have to explain क्या हो रहा है practically और कितने कितने time में energy one form से other form में convert हो रही. ठीक है. So explanation already beginning of that I gave you. Again I have explained you. It is compared with the mass and spring system. Initial position यहाँ पे है इसमें, which is equivalent to electrical energy. First is only electrical energy, and it is equivalent to the mass being at extreme position. Okay, seeing further, let's see what is next. इसमें यहाँ पर देखो उन्होंने थोड़ा और कंपेयर किया इसको. इंटरमीडिएट सिचुएशन भी कंपेयर किया. देखो यहाँ पर एनर्जी एट एनी इंस्टेंट व्हेन करंट इज आई एंड चार्ज इज क्यू, कम हो गया, पीक वैल्यू से चार्ज कम हो गया, तो देन टोटल एनर्जी विल बी, टोटल एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी थी दैट विल बी इन टू पार्ट्स, q square by 2c plus half li square. Partly it is electrical and partly it is magnetic, and it is equal to initial energy which was there in the charge capacitor this stage. Yeah. तो इन्होंने कंपेयर किया. देखो इसमें इन बिटवीन सिचुएशन है, मास इज गोइंग टुवर्ड द मीन पोजीशन, एंड यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, ये लेफ्ट के एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया. ऑल द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बिकमिंग जीरो, कन्वर्टिंग इनटू मैग्नेटिक, है ना. फिर अगेन है ना, यहाँ पर बोथ आर नॉन जीरो, बीच वाली पोजीशन. दिस इज नॉट एक्सट्रीम, दिस इज सेंट्रल पोजीशन, mean position. One energy converts into other, फिर it is further going this side. So again now current will start dropping. जैसे इसकी स्पीड कम होती है, इसमें करंट कम हो जाता है, and again whole energy becoming electrical with reverse polarity. जब extreme point पे अंदर की तरफ मास आ गया, फिर से it is equivalent to whole energy being electrical and zero energy being magnetic, but polarities are reversed. पहले यहाँ पे था ये, now it has come to the, यहाँ से यहाँ आ गया, other side it has come. Similarly यहाँ पे polarity reverse हो गई. So that's how they explain. So this is for your additional information. ठीक है. These all diagrams are given in your textbook. And practically what is happening, I told you, there is some resistance in connecting wires. So oscillation constant नहीं, कैसे रहनी चाहिए, ऐसे रहनी चाहिए. They should be constant. So, but they are damping now. Damping होने से फिर हमारा purpose solve नहीं होता, इसीलिए again this topic will be discussed in semiconductor devices. ठीक है. Now charge कितना होता है, how much prove that charge variation on the capacitor in LC oscillator is given by this. चार्ज की इक्वेशन देखो कॉस की इक्वेशन के साथ रिलेट है, कोसाइन फंक्शन पे डिपेंड करती है. कैन वी प्रूव? यस, वी कैन प्रूव इट अगेन विद टेकिंग द हेल्प ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. QM being the initial charge, that's maximum charge. तो ये अभी हमने okay. We know in simple harmonic motion, if equation is like this, then solution for x will be like this. X जो है displacement is इतना होता है. अगर ऐसे oscillation होता है तो displacement is given by this relation. Now similarly for charge का relation अभी हमने ये देखा था थोड़ी देर पहले, तो इसकी equation क्या होगी? Q will be QM sin omega t plus phi, है ना.
दिस ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड, वहां से हमने चार्ज की इक्वेशन लिख ली. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई. फाई क्या है? फाई की वैल्यू पता लग गया तो हमें एक्यूरेट इक्वेशन आ जाएगी, whether it is going to remain in sine or it is going to convert it into cos or something else. At t is equal to 0, initially whole charge is maximum charge, whole energy is electrical energy, charge कितना है qm initially. यहाँ पे t0 पुट कर दो और चार्ज qm पुट कर दो लेफ्ट साइड में, qm और ये एज इट इज, और ये t का फंक्शन 0 हो गया, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 1, तो साइन फाई की वैल्यू 1 आ गई, देयरफॉर फाई इज पाई बाय 2. पुटिंग हियर फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पर देखो वी पुट इट हियर, तो साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा नॉट टी विल मेक इट कॉस ओमेगा नॉट टी. तो कॉस की इक्वेशन होती है इसमें, ये प्रूव करना था देखो. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय cos function. All right. Only thing you have to use it. You don't have to prove. Prove ऐसे भी नहीं है आप उसमें, तो आप इसको यूज करेंगे अभी. सपोज आपको बोला जाए करंट निकालो, करंट फाइंड आउट द टी इन द एलसी ऑसिलेटर, है ना. इफ दे टेल यू फाइंड आउट एट टी इज इक्वल टू 2 seconds, फाइंड आउट द करंट, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और टी इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो करंट आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट किया है, कितना आ रहा है करंट देखो, कॉस का साइन हो गया और ये कांस्टेंट भी आ जाता है बाहर और अंदर भी रहता है. करंट निकाल सकते हैं टी, ओमेगा नॉट टी की वैल्यू दे देंगे आपको. ओमेगा नॉट तो हमें पता ही होता है कितना होता है, ओमेगा नॉट 1/√LC होता है. क्यू नॉट दे देंगे, टी दे देंगे, एल एंड सी also will be given. ठीक है, तो these are the part of your textbook, but generally बोर्ड्स में कम पूछते हैं इसमें, है ना. इट इज यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ज्यादा बोर्ड्स एग्जामिनेशन they are asking less number of questions from this topic. At least you have to remember the equations and all. Direct questions आएंगे इसके, derivations are avoided as usually. ठीक है, तो देखो this is the table you have to remember, particularly NEET and AIMS point of view. Here are the questions being asked in AIMS particularly. What is the equivalent of mass in the LC oscillator? मैकेनिकल ऑसिलेशन में मास है तो उसमें एल है, मास इनर्शिया है, ये भी इनर्शिया होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनर्शिया होता है. इट इज अपोजेस द करंट ग्रोथ एंड डिके आल्सो. फोर्स कांस्टेंट के इज इक्विवेलेंट टू 1/c. बिकॉज कैसे बोल सकते हो, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो जो इनिशियल एनर्जी थी मैकेनिकल सिस्टम में हाफ के एक्स स्क्वायर, but we had the energy q square by 2c. तो ये एनर्जी इसके इक्विवेलेंट हुई. तो यहाँ से देखो चार्ज इसके इक्विवेलेंट है, वो तो हमने बिगनिंग में ही कंपेयर किया था. एसएचएम में एक्स आता है और यहाँ पे चार्ज आता है, चार्ज इज इक्विवेलेंट टू एक्स, के विल बी इक्विवेलेंट टू सी. और मास का भी हमने डिस्कस कर ही लिया, मास इज इक्विवेलेंट टू inductance, both are inertia, and V का equivalent will be current, therefore V will be equivalent to current. ठीक है, so that's what we are doing. ये तो हमने beginning में कंपेयर किया था चार्ज एंड क्यू का, this one is 1 and V equivalent to current. यहाँ पे देखो, यहाँ से भी पता लग रहा है हमें इक्वेशन से, मैकेनिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. तो ऑसिलेटर में we can have the electromagnetic energy intermediate situation में, some will be electrical energy, some will be mechanical energy. Otherwise in capacitor energy is purely electrical and in inductor it is purely magnetic. But in case of LC oscillator it is electromagnetic energy.
Got it? So this is useful particularly for competitive examination, but boards में भी पूछ सकते हैं. There is no end of anything. Whatever given in the course, NCERT book can be asked any times in the boards examination. पूछ सकते हैं C का equivalent क्या है? K. In mechanical oscillation, it is equivalent to K. नहीं, 1 by K. C will be equal to 1 by K. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. All right, this is the table 7.1. useful table है. All right, let us see further what is the next one is. देखो इसमें कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, छोटे क्वेश्चंस important for both places. देखो, if QM is the maximum charge, find the maximum current IM in the LC oscillator. So what will happen when current is maximum? Whole energy of capacitor converts into energy into the what is called inductor. Complete उसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंडक्टर की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, विच इज हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर. जैसे के कन्वर्ट्स इनटू पी एंड वाइस वर्सा, पी कन्वर्ट्स इनटू के. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. तो हम होल एनर्जी को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एट आई मैक्स व्हेन current is maximum, whole electrical energy of capacitor converts into एक मिनट, just let me make this case. Converts into magnetic energy in inductor. तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, किसमें कन्वर्ट हो रही है? मैग्नेटिक एनर्जी में, हाफ एल आई स्क्वायर में. यहाँ से आई एम सॉल्व कर लो. एनीथिंग गेटिंग कैंसिल, 2 गेटिंग कैंसिल, दैट्स ऑल. तो आई एम स्क्वायर है, तो ये तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो क्यू एम का भी स्क्वायर है, तो क्यू एम बचेगा. अदर थिंग्स विल गो इनटू द व्हाट इज कॉल्ड रूट. अगर पोटेंशियल दिया है, if voltage is given, if of capacitor is given, तब वोल्टेज वाली एनर्जी लिखेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर से इसको इक्वेट करेंगे, है ना. यहाँ पे कितना आएगा देखो, आई एम विल बी वी अपॉन रूट ऑफ एल सी. नहीं, सी ऊपर है. ठीक है, ये आ जाएगा. दिस इज नथिंग बट ए कॉमन सेंस सिचुएशन
जैसा कि हम लोग SHM में करते आ रहे थे, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करते काइनेटिक एनर्जी से, हाफ kx स्क्वायर बिकमिंग हाफ mv स्क्वायर. Similarly here also. So depending upon what is given, चार्ज के टर्म में दिया है तो अपने चार्ज के टर्म में आंसर देगा, पोटेंशियल दिया है तो पोटेंशियल के टर्म में मैग्नेटिक एनर्जी को इक्वेट किया जाएगा. These are the basic things. Only thing you have to remember the formula. That's all. Values दी होंगी, so whatever the value you put it here, voltage की या charge की, L and C. There are some questions in NCERT book. We are going to do that. Let's see further. ठीक है, things are under control. बोलिए, are you there? Yes, sir. Okay, ठीक है ना? Okay. तो देखो एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक का कि सॉल्व एग्जांपल ही है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा वो है. देखो, शो दैट in the free oscillation of LC circuit, the sum of energy stored in the capacitor and inductor is constant in time. मतलब टाइम के साथ एनर्जी कांस्टेंट है. जैसे मास एंड स्प्रिंग सिस्टम में भी तो एनर्जी कांस्टेंट होती है. कितनी थी उसमें, ऐड करने के बाद कितनी आई थी, हाफ KA स्क्वायर आती है ना दोनों की, है ना. तो लेट्स सी यहाँ पे क्या आ रही है. तो electrical energy is at any instant, electrical energy is q square by 2c. q का डेरिवेशन अभी हमने किया था, ये cos का फंक्शन आया था, और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो करंट का रिलेशन आ जाता है. मैग्नेटिक एनर्जी इज दिस मच, तो करंट का फंक्शन अभी डिफरेंशिएट किया था वो डाल दो, दोनों ऐड कर दो, पहले स्क्वायर कर लो और सिंप्लीफाई कर लो. यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/√LC स्क्वायर होगा, रूट चला जाएगा तो L कैंसिल हो गया, यहाँ पे QM स्क्वायर आ गया और नीचे 2C आ गया. तो ये इक्वेशन हो गई आपकी, दिस इज इक्वेशन 1. ओके, दोनों ऐड कर दो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. तो 1 + 2 इज नथिंग बट ए सम ऑफ योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट एनी मोमेंट एंड मैग्नेटिक एनर्जी एट एनी मोमेंट. तो ये तो कॉमन आ गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है बिकमिंग 1 हो गया. तो ये टोटल एनर्जी वही आ गई जो इनिशियल थी, कैपेसिटर के पास जितनी इनिशियल एनर्जी थी वही आ गई. इंटरमीडिएट सिचुएशन में ऐड हमने प्रॉपर्ली ऐड किया उसको, तो देखा कि उतनी ही है जितनी इनिशियल थी. तो इफ देयर इज नो लॉसेस, व्हाट वी आर टेकिंग हियर इज दैट वन ओनली. आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं, नो लॉसेस इन्वॉल्व, एनर्जी रिमेनिंग कांस्टेंट. तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वही आ गया, है ना. जितनी एनर्जी बिगनिंग में है दैट विल बी मेंटेन्ड प्रोवाइडेड इट इज नॉट द डैम्प्ड ऑसिलेशन. पेंडुलम में भी वही रहता है, और मास एंड स्प्रिंग सिस्टम में भी टोटल एनर्जी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, जो इनिशियल है उतनी आइडियल ऑसिलेशंस में. तो दिस इज योर सॉल्व्ड एग्जांपल. नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन. देखो ऐसे क्वेश्चन you will find in the competitive examination and boards. So what is this? Let's see. चार्ज इतना है, चार्ज नहीं है ये उसका वो दिया है कैपेसिटेंस. चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर. व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन. तो इसको फ्री ऑसिलेशन ही एज्यूम कर रहे हैं, नो डैम्पिंग. तो फार्मूला इज 1/√LC. तो वैल्यू पुट कर दो, इतना आंसर आ जाएगा 1100 के आसपास पर सेकंड. रेडियन पर सेकंड होना चाहिए. दिस शुड हैव बीन रेडियन पर सेकंड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर राइटिंग पर सेकंड ओनली. तो रेडियन को वो ओमिट कर रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग इट, बट यू हैव टू टेक एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रेडियन पर सेकंड एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में पर सेकंड और हर्ट्ज. ठीक है.
तो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज सॉल्व कैलकुलेशन कर लेना आप। लेट्स सी व्हाट इज दिस। एक मिनट है। नाउ इसमें भी डायरेक्ट है, देखो यू कैन सी initial charge on the capacitor is 7.7, प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ना, दिया है उसमें 6 मिलीकूलम, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। तो फर्स्ट जो फार्मूला भी हमने डिराइव भी किया था, qm स्क्वायर अपॉन 2c, चार्ज इज गिवन एंड कैपेसिटेंस यहाँ पे दिया हुआ है 30 माइक्रोफैरड, पुट इट हियर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम्स, बाद के टाइम में टोटल एनर्जी कितनी होगी? आदित्य, Yes, sir. ये तो इनिशियल एनर्जी आ जाएगी जूल्स में, कितनी 0.6 जूल आ जाएगी। लेटर टाइम में कितनी एनर्जी होगी? व्हाट इज द एनर्जी? टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट सेम 0.6 जूल ओनली, 0.6 जूल ओनली। तो लॉसेस यहाँ पे नहीं ले रहे, आइडियल सिचुएशंस लेके प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं इसमें। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, वैल्यूज आर गिवन, qm स्क्वायर बाय 2c, चार्ज दिया है आपको इनिशियल। व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, f नॉट 1/2p अंडर रूट ऑफ lc। at what time is the energy stored, is completely electrical, t is equal to 0 पर है and completely magnetic, तो t is equal to t/4 पर है। t कहाँ से मिलेगा? फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल करने से t मिलेगा। at what times is the total energy shared equally between the इंडक्टर, तो ये t/8 पर, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ t/4 पर, तो कंप्लीट कन्वर्जन हो जाता है। t/8 पर इट इज 50-50। ये हम रिकॉल कर सकते हैं ना, मास एंड स्प्रिंग सिस्टम से हम रिकॉल कर सकते हैं। ये मास मीन पोजीशन से यहाँ तक जाने में, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में ये 0, ये t/4 होता है, फिर वापस t/4 पर आता है, मास फिर इधर t/4 पर आता है, फिर वापस t/4 पर। तो दैट यू कैन इजीली रिकॉल with the mass and spring oscillation. Mean position to the extreme position is done at time t/4. तो यहाँ भी वही है। और मिडवे पर 50-50, मिडवे मतलब मिड टाइम इंटरवल, t/4 का आधा, t/8 और 50-50 रहेगी, दोनों एनर्जी आधी आधी रहेगी। If resistor is inserted in the circuit, how much energy is eventually dissipated as a heat? जितनी होगी पूरी हीट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इनिशियली कितनी एनर्जी निकाली है? ऑल लिख दो यहाँ पर, ऑल एनर्जी, होल एनर्जी। तो डू वी हैव द आंसर? लेट मी सी, थोड़ा इसको हाईलाइट करके देखते हैं कितनी एनर्जी है इनिशियली। 1 जूल है। कैन वी सी आंसर? यस, 1 जूल है इनिशियली, तो 1 जूल विल बी इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट। और बाकी पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। फार्मूला लगाइए, ये डेरिवेशन इन्होंने निकाले हैं क्या? देखो यहाँ पे इन्होंने हिंट भी दी है, एनर्जी इज कंप्लीटली
कंप्लीट इलेक्ट्रिकल है, T इज इक्वल टू 0, हाफ ऑफ टाइम इंटरवल में वापस एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। T/4 पे it is converting into magnetic, further T/4 पे it is again becoming electrical, तो T/2 हो जाएगा, T/4 प्लस T/4। हाफ टाइम इंटरवल में जैसे मास भी देखो वन एंड से दूसरे एंड में आ जाता है, सिमिलरली हाफ टाइम इंटरवल में अगेन इट विल बी इलेक्ट्रिकल बट इट विल बी विद अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, कंप्लीटली मैग्नेटिक कितने पे होगी? T/4 एंड 3T/4। इसमें T/4 में ऐड कर दो T/2, 3T/4, फिर से T/2 में वापस हो जाएगी, जैसे इसमें T/2 में वापस आ रही वैसे इसमें भी T/4 के बाद T/2 ऐड करते जाइए, यू विल गेट दिस 50-50 कब हो रही है? T/8 है ना, T/8 में और फिर 3T/8 कैलकुलेशन इससे किए हैं। 3T/8 एक मिनट प्लस T/2 तो ये हो जाएगा T/4 है ना, वापस T/, ओके ऐसे देखो ये कितना हो रहा है आपका 2 क्या हो रहा है देखो T/, जस्ट ये वाली देखो ये डिजिट कहाँ से आ रही है, देखो T/8 तो हमने सीखा, 3T/8 कैसे आएगा? वापस जैसे मास जो है यहाँ पर, ओके यहाँ से देखते हैं हम लोग, वो डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ये देखो T/4 पर T/8 पर 50-50 है ना, दिस वन यहाँ से यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे था, ये T/8 हो गया, फिर इधर जाएगा यहाँ पर भी T/4 पर, ये समवेयर हियर इट विल रीच, तो T/8 के बाद अगेन T/4 के बाद फिर से 50-50 आएगा, तो दैट्स व्हाट इज डन हियर। इसमें आप यू कैन जस्ट चेक इट विद द मैकेनिकल एनर्जी के साथ, ये जो वैल्यू दी थी ना कहा यहाँ पर T/8 में 50-50 के लिए क्या करना है, T/4 ऐड करते चले जाना, फर्दर T/4, और सेम एनर्जी के लिए फर्स्ट वैल्यू जो है उसमें T/2 ऐड करते चले जाना, क्योंकि T/4 पे फिर से 50-50 हो रही, और सेम एनर्जी के लिए इनिशियल वैल्यू जो है फर्स्ट T/4 पे होगी, फिर उसमें T/2 ऐड होते जाएंगे, जैसे इसमें T/2 ऐड हो, तो दैट मच मे नॉट बी रिक्वायर्ड, ओनली फर्स्ट वैल्यू चाहिए आपको जो हमने सॉल्व की है, बट सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ योर बुक so you are supposed to know everything, and ये लास्ट वाला पॉइंट तो मैंने बता ही दिया, तो इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, eventually that will all convert into heat if there is resistance in the wiring। ठीक है, तो पूरा, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। फाइनली ये क्वेश्चन करके वाइंड अप कर देते हैं, देन वी नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी ट्रांसफार्मर्स, लास्ट टॉपिक है ये, तो ये क्वेश्चन बताइए पहले, देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q0 in LC oscillator, find charge remaining in capacitor if energy on capacitor becomes half of the initial value। जब एनर्जी उसकी आधी हो गई तो चार्ज कितना रह जाएगा? चार्ज भी आधा हो जाएगा या समथिंग एल्स? चार्ज will also become half or 1/4 or it will remain same? Of course remaining same तो not possible। बोलो, let Q be the charge remaining। Okay, you do yourself, ये क्वेश्चन खुद ही करो।
कल डिस्कस करते हैं इसको. That's all from my side. This is your homework problem. Okay, shall I end it now? Yes, sir. Okay. Any difficulty? इसमें कुछ you want to see it again? Something done everything correctly? You can skip the derivations and numericals के लिए practice कर सकते हैं इसके, including last question which is important. ये जो अभी दिया है very important है. इसमें ऑसिलेटर नहीं भी आता तभी, ऑसिलेटर का फॉर्मूला नहीं भी आता तभी भी कर सकते, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं इसको. We don't use the formula of LC oscillator in this question. Okay, ending now therefore. Thank you.